my dear students, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to study the lecture third of what this chapter, the light chapter. So we will be talking about the reflection of light. क्या होता है reflection, ठीक है, और कब कब इसकी conditions होती हैं कि भाई reflection होगा, right? What are the necessary conditions, right? And the types of reflections and all and all and all. So we will be talking about reflections today. ठीक है, जो भी हमारे आसपास रिफ्लेक्शंस होते हैं, we will be talking about that, observing that in the nature along with some questions. Alright, so we will be doing some questions today also. So basically ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो चैप्टर हम स्टार्ट नहीं करें बट थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करें, so basically we have already started the lecture. बट ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर. क्यों? क्योंकि लाइट जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. सो अगर आप लाइट के सारे जो यू कैन से द बेसिक कंसेप्ट अभी क्लियर कर लेते हैं, सो इन फ्यूचर दैट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. सो मेक श्योर दैट यू डू स्टडी लाइट विद वेरी मच डीपनेस. ऑलराइट, तो जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ पढ़ते चलो अलॉन्ग विद ऑल द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू कंसीडर अबाउट लाइट. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली आपको क्या करते चलना है, रिवीजन करते चलना है. ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक्स भूल जाएं. ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फ्यूचर में IIT JEE या नीट को स्टडी करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको फिर से पढ़ने ही पड़ेंगे. तो अगर आपके बेसिक अभी से क्लियर हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. राइट, इसीलिए दैट्स वाई यू शुड डेफिनेटली study it, alright, with very much deepness. So you all know that we do prepare for the school examinations along with the Olympiad. So basically we deal with the NTSC, NSCJS, PRMO along with your school examinations. तो हम जो भी टॉपिक स्टडी करते हैं वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. राइट, तो बेसिकली वी आर स्टडिंग द टॉपिक एंड वी आर डूइंग द क्वेश्चंस, right, and all the things which are totally necessary. Definitely you can crack both the examinations simultaneously. Alright, you can definitely crack the NTSC along with your school examination, and you can definitely crack the NSCJS along with your school examination. It is possible, but in a right path. Alright, so you should have a definite path that you are going through, you are studying this step by step, and then only it can be possible. Alright, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. Alright, that is you have to write the TTB010. अगर आप ये कोड लिखते हैं TTB010 in the search box of the Telegram app, then our channels of the class 10 appears, and then you can join the channel and you can access all the DPPs and study material available over there. Alright, and definitely आप उसको join कर सकते हैं for extra knowledge कि भाई अब notifications भी आएंगे आपको, lectures की notifications. Alright, so you can get the specific lectures. Alright, सो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. बेसिकली आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा. Alright, and now you can see this. This is the team which is going to help you a lot, because this is the team which is dealing with the science and mathematics Olympiad, and we are providing you the quality lectures so that you can crack the examinations. Basically this is what we are going to do, right? And these lectures are free for everyone, so make sure you share them with your friends and with your family members, relatives, anybody you can. Alright, तो अगर आप शेयर करते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, because they can get these classes free. Right, and this is our motto, to make you available, crack the examinations, right? So that if you crack the examination, alright, तो आपका ही बहुत अच्छा भला होने वाला है. right? तो definitely you should do that, you should share it with everyone ताकि बाकी लोग भी ऐसा कर सकें. Now in accordance to providing you the free lectures, we have also provided you the packages. right, packages के अंदर what are the necessary things, because एक examination को crack करने के लिए आपको कुछ ना कुछ important चीज़ें चाहिए होती है, कुछ minimum you can say minimum important resources आपके पास होने चाहिए. For example, अगर आपने कोई ओलंपियाड डिसाइड किया दैट यू आर वांट टू क्रैक दैट ओलंपियाड या फिर क्रैक दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आपके पास उसी के फोकस स्टडी मटेरियल होना चाहिए. राइट, एंड देन आपके पास जो है क्लासेस होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए जिनसे आप पढ़ सको. राइट, यू हैव टू डू द होमवर्क आपको सबमिट करना होना चाहिए. डेफिनेट सी बात है, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. Homework is the most important thing, right? That is why we have included homework submission in this package. Alright, तो ये जो होमवर्क है वो भी ज़रूरी है. एंड देन द टेस्टिंग पार्ट, आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट टेस्टिंग पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर आप खुद को टेस्ट नहीं करते हैं तो फिर क्रैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके. ऑलराइट, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है दैट यू कैन गेट ऑल द स्टडी मटेरियल,
ठीक है. You can get all the video lectures, right, live also, the video lectures also, right. You can get the homework submission feature, you can get the bi-weekly quizzes where you are going to attempt the quizzes twice a week, and then the periodic test paper. So basically periodic test papers आपको ये बताएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन है, उसका पैटर्न कैसा है, लाइक हाउ टू डील द क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने टाइम में करने हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो ये चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी. तो बेसिकली आप एक रिहर्सल कर सकते हो, राइट. एंड उस रिहर्सल में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. कैसे? क्योंकि अगर आप एक बार उस पेपर पैटर्न से फैमिलियर हो जाते हो तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपको उतना डर नहीं लगेगा. सो बेसिकली एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फॉलो करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप्स चाहिए जो बहुत नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, राइट. एंड दोज नेसेसरी, द मिनिमम नेसेसरी जो स्टेप्स हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं इन दिस ईयर लॉन्ग पैकेज. यू कैन ज्वाइन दैट पैकेज, यू कैन एक्सेस द स्टडी मटेरियल, you can do the homework and submit it to us, you can watch the video lectures, you can do the testing, and then you can crack the examination. That should be your basic goal, right. तो आप डेफिनेटली, अगर आपको ऐसा लगता है यू नीड द प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड अ स्टेप बाय स्टेप, यू कैन से द सोल्यूशन फॉर योर प्रिपरेंस, यू कैन जॉइन दैट. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली टेस्टिंग पार्ट कि भाई मुझे सिर्फ टेस्ट चाहिए, ऑलराइट, तो यू कैन डेफिनेटली जॉइन द टेस्ट सीरीज, राइट. तो बेसिकली यू विल बी गेटिंग द बाई-वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स अलॉन्ग विद द वीडियो क्लासेस. So if you have any doubt, you can watch them. Alright, so these are the two packages. You can join those packages, alright, and definitely if you are really interested in buying them, then you can write my code SIVA Live. SIVA Live, if you write this code, then you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Alright, and the necessary part, if you have any query regarding these, like if you want to know how these will be gonna benefit you and how these thing will be in a proper package, so you can definitely call us on the number 919549041111. Alright, so you can definitely do that. You can call us, all your queries will be resolved over there. So basically what we are going to do is we are going to study a lot, we are going to do preparations for our examinations, right. And you can do this using this either, or you can always watch the free lectures, always, right. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और प्रॉमिस करते हैं दैट प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स अलॉन्ग विद यू विल बी रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस. जो बच्चा डेली रिवाइजन नहीं करता है उसका बहुत नुकसान होता है. अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो यू शुड रिवाइज डेली. जो बच्चा डेली रिवाइज करेगा वो स्मार्ट स्टूडेंट के साथ साथ एक बहुत अच्छे रैंक एंड नंबर से क्रैक भी करेगा एग्जामिनेशन को. Alright, so you should do that. Alright, तो अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं. This is the lecture third, right? This is the lecture third, reflection of the light. We are going to understand what is reflection, how it is going to help us and all. क्या वो हेल्प करता भी है कि नहीं, या फिर वो सिर्फ एक फिनोमेना है, ठीक है. ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. So basically what we are going to deal with the reflection of light, ये हम देखने वाले हैं. General terms related to reflection of light, ये भी हम देखेंगे. भाई एक फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, तो उससे जुड़े हुए जितने टर्म्स हैं वो आपको पता चलना चाहिए. अगर वो टर्म्स आपको नहीं पता होंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी कहाँ में, प्रॉब्लम्स में. जब आप क्वेश्चंस करने लगोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आपको वो टर्म समझ में नहीं आएगा. सो ये टर्म्स जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हैं, यू शुड डेफिनेटली डू दैट, ठीक है. तुम्हें पता होना चाहिए हाउ टू यू नो गेट दैट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी है. फिर हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड फिर हम देखने वाले हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ऑलराइट, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. ऑलराइट, सो व्हाट इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कुछ नहीं है, बट ये क्या है कि एक सरफेस पे, ठीक है, एक सरफेस पे लाइट फॉल होती है. फॉल होने के बाद जैसे ही वो उसे टकराती है, उस सरफेस से लाइट जब टकराती है तो क्या होता है, इट कैन गो बैक इनटू द सेम मीडियम. अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है, लाइट आती है किसी सरफेस से टकराती है एंड गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, अगर ऐसा पॉसिबल होता है देन दैट फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मेन फीचर, मेन फंक्शन, मेन मतलब यही है कि लाइट का पाथ चेंज हो गया आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस. सरफेस से आकर जब वो टकराई तो उसने पलटी मार ली, वो वापस चली गई.
दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, देखो the phenomenon of bouncing back of light in same medium after striking the interface of two media is called reflection of light. अब तुम सोचोगे interface of two media कैसे आ गया, तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि बेटा कोई भी सरफेस जो होती है, कोई भी सरफेस, ठीक है, वो एक्चुअली में एक इंटरफेस की तरह बिहेव करती है. दो मीडियम के बीच का इंटरफेस, जिसके ऊपर कुछ और मीडियम, जिसके नीचे कुछ और मीडियम. फॉर एग्जाम्पल आपका टेबल का सरफेस, आपके घर में जो अभी टेबल है जिसके ऊपर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई बेड पे भी पढ़ रहा हो, इट्स ओके, ठीक है, बट जो टेबल का सरफेस है, लेट्स इमेजिन, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, टेबल का जो सरफेस है, तुम खुद से सोचो उस सरफेस के ठीक ऊपर एयर अवेलेबल है, मीडियम 1, और उस टेबल के सरफेस के ठीक नीचे, ठीक है, बिल्कुल ठीक नीचे, व्हाट इज दैट, वुड, राइट. तो वहां पर भी यू आर गेटिंग द टू मीडियम्स. सो इंटरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस, ठीक है, जिसके पीछे कोई और मीडियम है, जिसके आगे कोई और मीडियम है. सो बेसिकली अगर ऐसा कोई इंटरफेस है, ठीक है, जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है और लाइट एक मीडियम में आती है, इस सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चले जाए, देन दैट फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन है हमारी जिंदगी में चारों तरफ है. मैं तुम्हें बताऊंगी इतना ज्यादा चारों तरफ है, इतना ज्यादा चारों तरफ है कि आप सोचते रह जाओगे. एक्चुअली मैं बाद में बताती हूँ. ठीक है, पहले तो तुम यहाँ देखो, ये जो आप देख रहे हैं अंदर आपको दिखा है, बाहर तो एक जग रखा हुआ है, ये आपको पता है, राइट. मतलब ये जो एक मिरर है ना, प्लेन मिरर है, सिंपल मिरर है जिसमें आप अपनी शक्ल देखकर आते हैं, राइट. सो बेसिकली दिस इज द मिरर, ऑलराइट. इस मिरर के बाहर जो वेस रखा हुआ है, दैट इज द एक्चुअल वेस, वो एक असली का वेस है. यू कैन टच दैट, फोटो में नहीं, बट अगर तुम वहां होते तो यू कैन टच दैट वेस. ठीक है, आप उसको उठा सकते थे, ठीक है, आप उसमें से पानी भी पी सकते थे. अब आप इस शीशे के अंदर देखिए, मतलब इस प्लेन मिरर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वेस, दैट इज नॉट रियल, वो रियल नहीं है. आप उसको उठा के पानी नहीं पी सकते, आप उसको छू ही नहीं सकते, उठाना तो बहुत दूर की बात है. ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है जो कि प्लेन मिरर के अंदर है, एक्चुअली में वो होता है इमेज, वो होता है इमेज. और ये इमेज क्यों है, किसकी वजह से है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की वजह से. सो बेसिकली ये जो प्लेन मिरर जो हमें हमारा चेहरा दिखाता है, राइट, हमें बताता है कि भाई तुम ऐसे हो, ठीक है, वी कैन वॉच एवरीथिंग, द इमेज हमारे आसपास की, हमारी खुद की, हम जो इमेजेस देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर, वो किसकी वजह से दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की वजह से दिखता है. सो बेसिकली ये जो इमेज है वो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन है. किसका रिफ्लेक्शन है, इस सिमिलर वेस का रिफ्लेक्शन है मिरर के अंदर, ऑलराइट. इसी तरीके से जब कोई यू कैन से एक ऐसा सरफेस प्लेन बन जाए, अब जहाँ पे देखो ये वाटर है ना, यहाँ पे आपको जो पानी के अंदर दिख रहा है रिफ्लेक्शन, ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है जितना कि प्लेन मिरर में है, राइट. बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो दिख रहा है ना कि भाई ये जो पहाड़ है सेम उसका नीचे भी पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ नीचे एक्चुअल पहाड़ तो नहीं है ना, ये तो उसकी सिर्फ एक इमेज है. और ये इमेज कहाँ बन रही है, पानी के सरफेस पे, राइट. पानी इस वक्त कैसा है, इट्स नॉट फ्लोई, इट्स नॉट वेवी, राइट. यहाँ पे ये बिल्कुल एक यू कैन से स्टिल वाटर है ना, यहाँ पर एक स्टिल वाटर है. सो बेसिकली ये जो आप इमेजेस देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट का एक रेप्लिका है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यू कैन नो द रिफ्लेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ होगा कि भाई लाइट आ रही होगी, इस पानी से टकरा के वापस जा रही होगी, देन ओनली यू आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो, बट फर्स्ट यू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा. रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट का आना, टकरा के वापस उसी मीडियम में चले जाना जिस मीडियम से वो आ रही थी. मेन फंक्शन ये है रिफ्लेक्शन का. ठीक है, अब देखो ये जो रिफ्लेक्शन है उससे रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हम देखने वाले हैं.
बेसिकली। तो मैं तुम्हें सबसे पहला टर्म बताती हूँ, ठीक है। अब हम टर्म्स के बारे में बातें करेंगे। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखा है कि भाई वो क्या चीज़ होती है, क्या फिनोमेना होता है, क्या बिहेवियर होता है, राइट। ये लाइट का ही बिहेवियर है एक्चुअली, है ना। तो अब हम देखते हैं व्हाट दी जनरल टर्म्स। सबसे पहला टर्म जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द सबसे पहला टर्म, व्हाट इज दैट, दिस इज एक्चुअली द फोटो और यू कैन से द सिंबल ऑफ अ मिरर। सिंबल कैसे, आप देख रहे हैं एक लाइन, ठीक है, एक सिंगल लाइन हमने ड्रॉ की है और उसके बाद हमने नीचे थोड़े से डैशेस लगा दिए। ये जो डैशेस वाला पार्ट है एक्चुअली में दैट इज द, यू कैन से द पेंटेड पार्ट, क्योंकि हम ये बात जानते हैं जो मिरर होता है उसमें एक तरफ यू कैन वॉच द योर फेस, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की तरफ क्या होता है, पेंटेड होता है, राइट, वहां पे पूरा पेंट होता है, ऑलराइट। सो दैट डैशेस इज शोइंग यू रिप्रेजेंटिंग द पेंटेड पार्ट। उसके ऊपर वाला जो है दैट इज द पार्ट बाय विच यू कैन गेट द शैडो, ठीक है, नॉट द शैडो एक्चुअली द इमेज। सो बेसिकली यहाँ से आप देखेंगे यू विल बी गेटिंग द इमेज, नीचे से आप देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ मिरर्ड, यू कैन से पेंटेड वन, ठीक है। तो ये है एक मिरर, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड मिरर, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो मिरर है उसका मतलब क्या है, एक प्लेन स्मूथ सरफेस। अभी थोड़ी देर पहले हमने पहाड़ों वाली जो फोटो देखी थी उसके अंदर आप देख पा रहे थे कि पानी के अंदर भी पहाड़ का रिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट, रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके अंदर पहाड़ की इमेज बन रही है। वो एक्चुअली वो पानी का सरफेस इज एक्चुअली बिहेविंग एज अ मिरर, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, राइट, लेकिन वो उतना प्लेन नहीं है जितना कि ये प्लेन होता है, राइट। मतलब ये जो जिस मिरर की में हम अपना शक्ल देखते हैं वो कितना ज्यादा प्लेन होता है, उतना कंपैरिजन में नहीं था, बट इट वाज स्टिल। तो एक अगर हाईली पॉलिश सरफेस है तो उसके पूरे पूरे चांसेस हैं दैट वी कैन सी आवर रिफ्लेक्शन और अदर रिफ्लेक्शन, दूसरे ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शंस भी हम देख सकते हैं, राइट। So basically what is that mirror? Mirror is actually the shiny object, the shiny very polished object, alright, and जिसके ऊपर से ये reflection होता है, regular reflection बोला गया है, I will be telling you what is that, but before just listen to it that a reflection occurs on that mirror, right. तो basically I will be telling you कि यहाँ पर ऑलराइट, देखो यहाँ पर जो है ये जो मिरर है जो हमने इस तरीके से लाइन और डैशेस से शो किया है, हमने इसका नाम एम डैश रख दिया है। तो दिस इज द एम डैश विच इज एक्चुअली शोइंग यू द मिरर। मिरर शाइनिंग पार्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है, और पेंटेड पार्ट नीचे की तरफ है, ठीक है। पेंटेड पार्ट हम डैशेस से शो करते हैं। So this is a highly polished surface, एक ऐसा पॉलिश जो, एक ऐसा सरफेस जो highly polished हो, that can only show you the reflection of the objects, all right. कोई रफ नहीं दिखा सकता, रफ कोई सरफेस नहीं दिखा सकती, all right. अब देखो second thing when a light is falling on this mirror, अभी ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से देखना है आपको, what is that? जब कभी भी ये जो लाइट है ये ग्रीन कलर का है, बट एक्चुअली दिस इज एन एरो इंडिकेटिंग द पाथ ऑफ द लाइट। सो बेसिकली आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर रे ऑफ लाइट। तो ये जो है ये एक्चुअली में रे है जो कि क्या कर रही है, मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, मिरर के ऊपर गिर रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये मिरर के ऊपर गिर रही है, मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, मिरर की तरफ जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे, अ रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पर जो है वो रे ए बी इज द इंसिडेंट रे। मैं इसका नाम फटाफट से लिख देती हूँ, हमने मेंशन कर दिया है ए बी, ठीक है। तो ये जो ए बी है एक्चुअली में क्या है, एक इंसिडेंट रे है, एक ऐसी लाइट रे है जो कि मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, मिरर की तरफ जा रही है, ऑलराइट, और वो भी किसकी तरफ, शाइनिंग पार्ट की तरफ, ठीक है, पेंटेड पार्ट की तरफ नहीं जाती है, पेंटेड के पार्ट की तरफ से कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो शाइनिंग पार्ट की तरफ ही जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बी पॉइंट है, जिस पॉइंट पे जाके ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है ये हमेशा मिरर पे होता है, ठीक है, मिरर के ऊपर ही होता है। मतलब इफ आई वांट टू शो द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो आई वुड बी पॉइंटिंग इट लाइक दिस,
I would be pointing it like this. तो this B, this point actually जहां पर ये लाइट जाके टकराई है, that point is known as the point of incidence. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ। ये यहां से लाइट रे आ रही थी, इस बी पॉइंट पर टकराई जो कि मिरर के ऊपर है, एंड इट गोज बैक इनटू द एयर, वापस से एयर में चली गई, मतलब एयर से ही आ रही थी, मिरर से टकराई और वापस से एयर में चली गई, राइट। अब ये जो वापस जा रही है ये कौन सी लाइट रे है वो मैं आपको बताती हूँ। द लाइट रे विच इज गोइंग बैक इज द रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो चुका है, आई रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। A ray of light which bounces off the surface of a mirror is called reflected ray. Basically जो मिरर से दूर जा रही होती है that is called the reflected ray. तो यहाँ पर B, ठीक है, B के साथ C. So B, C ray, ये जो ray आप देख पा रहे हैं that ray is the reflected one. So basically incident ray fall होती है मिरर के ऊपर, टकराने के बाद वो बन जाती है reflected ray and it goes back into the same medium. ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी एक और मैं पार्ट आपको बता देती हूँ, नॉर्मल, ठीक है। व्हाट इज दैट नॉर्मल? नॉर्मल इज एक्चुअली अ नॉर्मल, हमें नहीं पता नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो हम लोगों ने ड्रॉ की है, बट दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो mm डैश इज द मिरर, ये mm डैश क्या है, एक मिरर है, और इस मिरर के ठीक परपेंडिकुलर एज यू कैन सी दिस एन बी लाइन जो है, दैट एन बी लाइन इज एक्चुअली द नॉर्मल, ठीक है। ये जो एन बी लाइन है वो क्या है, वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब अब मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो मैथ्स में हम थोड़ा मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स जो होता है मैथमेटिक्स, वहाँ पे जब आप एंगल्स और 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री ये सब हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को हमेशा नॉर्मल बोलते हैं, अ रे गोइंग नॉर्मल, या फिर समथिंग लाइक दैट कि कोई एंगल नॉर्मल एंगल है, राइट। तो ये जो 90 डिग्री होता है दैट इज टोटली नॉर्मल इन द मैथ्स, बहुत कॉमन होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसी वजह से हम नॉर्मल को 90 डिग्री पे बनाते हैं हमेशा। तो यहाँ देखो ये जो नॉर्मल है बी एन दैट इज 90 डिग्री टू दी सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर के हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, एंड दैट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये कोई लाइट रे नहीं है। दिस नॉर्मल इज मेड बाय अस, हम लोगों ने इसे बनाया, दिस इज द इमेजिनरी लाइन, ऑलराइट। अब हम देखते हैं कि क्या यूज है जब ये एक इमेजिनरी लाइन है, व्हाई इट इज देयर, वो हम देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेसिकली एक ऐसा एंगल जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, मतलब जिससे इंक्लाइन होकर लाइट फॉल कर रही है, लाइट रे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो बेसिकली द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। यहाँ पर मेंशन पे जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, विद द नॉर्मल, ऑलराइट, विद द नॉर्मल। सो बेसिकली ये मैंने तुम्हें क्यों बताया विद द नॉर्मल, ये मेंशन है क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेसिकली दिस एंगल, दिस वन, एंगल ए बी एन, ये जो एंगल होगा दैट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये चीज भूलनी नहीं है, कई बार गलती से इस मिरर के साथ बनने वाले एंगल को कई लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अगला देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये जो एंगल हुआ यानी NBC, ये वाला जो एंगल हुआ NBC मतलब नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे हम कैसे शो करते हैं, उसे हम लिखते हैं एंगल R, स्मॉल r, और इंसिडेंस को लिए लिख देते हैं स्मॉल i, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल गया है, ठीक है। आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता चल गया है, लाइट रे पता चल गया है, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट पता चल गया है, नॉर्मल पता चल गया है, मिरर पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, दो और चीज़ें बाकी है, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ग्लैंस का मतलब क्या हुआ, ये जो ग्लैंस है और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने पढ़ा ये दोनों थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली में ये दोनों मिलके क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ये चीज़ मैं तुमको बताती हूँ, देखो ये देखो, ये वाला जो एंगल हुआ ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है। ये वाला जो एंगल हुआ दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इंसिडेंस वाला जो एंगल है दैट इज मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, लेकिन मिरर के साथ जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, दिस वन, मिरर के साथ जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाती है दैट इज नोन एज द ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा वाला? ये वाला, ए बी एम, या फिर यू कैन से एम बी ए। दिस एंगल इज एक्चुअली द ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक और बात भाई, रिफ्लेक्शन भी तो होना चाहिए। ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? जो ये रिफ्लेक्टेड रे बनाती है मिरर के साथ, दिस इज एक्चुअली द ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपको ये मेन चीजें ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, 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 ठीक है। और जो ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एक्चुअली में मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। देखो मैंने कितना अपोजिट बोला है, अब तुम लोग इसको ध्यान से समझ सकते हो। देखो दिस वन, सबसे पहले मिरर से और जो इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एंगल होगा ग्लैंस एंगल। मिरर से नहीं, मिरर से और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में क्या होगा? ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं तो दैट वुड बी इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। सो यू विल बी गेटिंग ऑल द एंगल्स। अगर आप ये एंगल्स याद रख पाओगे तभी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, और इस लेक्चर के एंड में आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है बच्चों। अब आप फटाफट से इसे नोट कर लो। ऑलवेज मेंशन, सारे के सारे टर्म्स आपको मेंशन करने हैं, फटाफट से मेंशन करो। राइट, अब आगे बढ़े। चलो अभी अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इतना कुछ खास नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो तुमने बचपन में पढ़े हैं ना, वही वाले। बचपन माने तो 6, 7, 8, ठीक है। उसके अलावा तो तुम क्या पढ़ोगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो 5th क्लास में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मतलब ये बात तुम सोचो कि कोई भी इस दुनिया में बिना लॉज के नहीं जीता। मतलब एक, अगर तुम्हें लाइफ अच्छे से जीनी है तो देयर हैज टू बी लॉज। हम लोगों के लिए ट्रैफिक लॉज हैं, ठीक है, और भी न जाने कितने सारे लॉज हैं, हमें वो सब के सब जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आप ये मत सोचो कि आप ही अकेले लॉज को फॉलो कर रहे हो। एक्चुअली में हर एक चीज़ लॉज को फॉलो करती है। ये हमारी अर्थ लॉज को फॉलो कर रही है, ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो कर रही है, राइट। अर्थ जो है, बाकी प्लैनेट, सन, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, इवन सब कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, राइट। पर हो सकता है उनके लॉज हमें नहीं पता हो। इसी तरीके से ये जो लाइट है ये भी लॉज को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये लाइट फॉलो करती है, राइट। तो ऐसे लॉज, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑबे सर्टेन लॉज, ऐसे लॉज जो कि लाइट फॉलो करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ऑलराइट। तो दोज लॉज आर नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 by 1 वो बचपन वाले हमारे लॉज जो हम लोगों ने सीखे थे। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो कोई भी याद रख सकता है। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ मैं फटाफट से लिख देती हूँ, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, एंगल आई, और ये वाला जो एंगल है, एंगल आर, ये हमेशा जिंदगी में इक्वल होने वाला है। एंगल आई इज ऑलवेज 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 इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमेशा जिंदगी में एंगल्स इक्वल होंगे, ऑलराइट। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दिमाग में बैठा लो। हमेशा फॉलो करती है लाइट, ठीक है, वो कभी लॉज को नहीं तोड़ती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। सेकंड देखो, सेकंड, incident ray, reflected ray and normal to the reflecting surface always lie in the same plane. What is that? Same plane में lie करते हैं। देखो same plane में lie करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ध्यान दो, यहाँ से लाइट रे आई और इस मिरर से टकराई तो वो उसी प्लेन में चली जाएगी। What is that plane? This plane is the plane of the board. ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है ना, ये तो पता है ना भाई, ये एक प्लेन है। तो ये जो प्लेन है
इसी प्लेन में लाइट रे आती है, इसी प्लेन में चले जाती है, और नॉर्मल भी हम इसी प्लेन में बनाते हैं। अब तुम अपनी कॉपी में जब इन डायग्राम्स को ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे, एक लाइट रे आएगी तुम्हारी कॉपी में, टकराने के बाद मिरर से वापस चली जाएगी तुम्हारी कॉपी में, और वो एक नॉर्मल तुम अपनी कॉपी में ही ड्रॉ करोगे। सो बेसिकली तीनों चीजें एक ही प्लेन पे है, राइट? दैट इज द सेकेंड लॉ कि भाई ये सब प्लेन में ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे इस तरीके से मिरर से टकराई और बाहर आ गई तुम्हारे तरफ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये प्लेन के बाहर नहीं जाती, ये प्लेन को फॉलो करती है, जिस प्लेन में आती है उसी प्लेन में चले जाती है, ठीक है? सो बेसिकली दीज टू आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फटाफट से नोट कर लो, ये तो बच्चों वाली बिल्कुल बात है, ठीक है? ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो लॉज हमें पता चले, ठीक है, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी हैं जो कि लॉज को ही फॉलो हो रहे हैं, मतलब एक आप ऐसा बोल सकते हो कुछ स्पेशल कंडीशंस ऑफ दैट लॉज, ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस। लेट अस सी दैट फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या कहती है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ। इसका मतलब वो जो लाइट रे है जो कि अगर मिरर के या फिर किसी सरफेस के 90 डिग्री जाके गिरती है, अगर 90 डिग्री पे फॉल होती है, उस मिरर से टकराती है 90 डिग्री पर, तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, मतलब टकराने के बाद अपना उल्टा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे लौट जाएगी, रिट्रेसेस इट्स पाथ, राइट? ये जो है वो एक फैक्ट है जो कि पॉसिबल है और जो होता भी है, ठीक है? एंड दिस लॉ अगर तुम देखना चाहो कि ये जो हमने फैक्ट देखा है, ये जो हमने स्टेटमेंट देखा है, दिस इज टोटली फॉलोइंग द रूल्स, ऑलराइट? तो क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर की रे जो है इस लाइट पे फॉल हो रही है, तो क्या होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऐसी की ऐसी रे वापस चली जाएगी, ठीक है, ऐसा का ऐसा वापस चले जाएगा, ऑलराइट? सो दैट इज द गुड थिंग, है ना? ये देखो इस तरीके से नीचे आती है और फिर ये चली जाएगी ऊपर, बिल्कुल इसी पाथ पे चली जाएगी बिना कुछ बोले। दिस इज एक्चुअली फॉलोइंग द रूल्स। कैसे रूल्स फॉलो कर रही है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों 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 ये क्यों फॉलो कर रही है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंसिडेंट रे, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये फॉल हो रही है। एरो से वैसे तुम्हें पता चल जाना चाहिए कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, वो एरोज तुम्हें बता देंगे, ठीक है? इंसिडेंट रे, और जो ऊपर वापस जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ऑलराइट? सो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर हम किसी सरफेस के, शाइनिंग सरफेस के, ठीक है, क्या करेंगे, 90 डिग्री पे लाइट गिरवाएंगे तो बेचारी लाइट क्या करेगी, वापस उल्टे अपने पाँव चले जाएगी, उल्टे पाँव चले जाएगी, ऐसा बोलते हैं, ये एक फ्रेज है एक्चुअली हिंदी में। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये रहा इतना ब्यूटीफुल सा एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही बता देती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी लाइट रे, जब कभी भी इंसिडेंट रे फॉल होती है 90 डिग्री पर, तो तुम मुझे बताओ कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाती है? सोचो, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है। अब क्योंकि लाइट रे खुद नॉर्मल से ही आ रही है, तो कितना एंगल बन रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा होगा, 0 डिग्री, राइट? अब क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री, राइट? एंड हम ये बात जानते हैं कि भाई लाइट फॉलो करती है रूल्स को। रूल क्या कहता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए, और उसी को 0 बनाने के लिए ये अपना पाथ वापस से रिट्रेस कर लेती है, क्योंकि इसे उसी नॉर्मल पे जाना होता है, ठीक है? सो बेसिकली रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में ये ऐसा बिहेवियर शो करती है, ऑलराइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि कभी भी 90 डिग्री पे अगर गिरती है लाइट रे, तो वो क्या करती है, अपने पाथ को फॉलो करती है, ठीक है, रिट्रेस करती है एक्चुअली। सेकेंड फैक्ट मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सचमुच के लॉज है, और हर एक सरफेस ऐसा फॉलो करती है। जरूरी नहीं है कि भाई कर्व सरफेस है उसके लिए अलग रूल बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? प्लेन सरफेस जैसे कि हमारा नॉर्मल प्लेन मिरर, स्फेरिकल सरफेस आइदर कनकेव आइदर कन्वेक्स, दोनों ही केसेस में रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है? ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये फॉलो होंगे, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, एंगल आई एंगल आर, एंगल आई एंगल आर दोनों ही बराबर है। दिस इज यू कैन से द convex surface,
this is concave surface, these are the spherical mirror, that means the mirror which are little bit of curvy, all right. तो ये जो spherical mirrors हैं एक्चुअली में ये भी सेम रूल्स को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये जो दोनों रूल्स हमने पढ़े हैं ये दोनों रूल्स स्फेरिकल के लिए भी पॉसिबल है, यही दोनों रूल्स प्लेन के लिए भी पॉसिबल है, यही दोनों रूल्स हर सरफेस के लिए पॉसिबल है। बेसिकली लाइट हमेशा इन रूल्स को फॉलो करेगी, लाइट कभी भी रूल्स नहीं तोड़ती, ठीक है। अब हम ये बात देख लेते हैं, हो सकता है किसी से मतलब अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं फटाफट से। चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं और जो हम ये कमरा देखते हैं, ठीक है, आपको पता है ये दोनों चीज़ें रिफ्लेक्शन से पॉसिबल है। देखो मैं तुम्हें एक जो है बहुत ही बढ़िया बात बताती हूँ, आज तुम्हें अपनी नॉलेज पे बहुत ही गर्व जो है वो होने वाला है कि भाई तुम ये बात जानते हो। हमने एक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो लाइट के बारे में पढ़ी थी जब हम लाइट के कुछ क्वेश्चंस को और लाइट की डेफिनेशन को बना रहे थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने ऐसा किया था। तो हमने क्या बोला था, हमने ये बात बोला था कि लाइट खुद तो इनविजिबल होती है लेकिन बाकी चीज़ों को विजिबल कर देती है, मतलब खुद नहीं दिखती लेकिन बाकी चीज़ों को दिखा देती है। सोफा, टेबल लैम्प, मैट, दीवारें, घर, पेड़, सब कुछ दिखता है, राइट। इसका मतलब लाइट कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है कि वो बाकी सभी चीज़ों को दिखा देती है, राइट। कैसे दिखाती है, ऐसे दिखाती है, ठीक है। दीज रिफ्लेक्शंस एक्चुअली आर इल्यूमिनेटिंग द थिंग्स, ये जो रिफ्लेक्शंस हैं इनकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना नहीं होता तो शायद हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते। सो बेसिकली लाइट का वो जो प्रॉपर्टी है कि वो खुद इनविजिबल होती है लेकिन वो बाकी चीज़ों को विजिबल बना देती है, बाकी चीज़ों को दिखा देती है, तो ये सिर्फ पॉसिबल हो रहा है रिफ्लेक्शंस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो ये भी एक रिफ्लेक्शन है, आप सचमुच में सोच पा रहे होंगे कि ये सचमुच में रिफ्लेक्शन है। आप अपने रूम में चारों तरफ नजर दौड़ा के देखो, आपको सब दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। और ये जो आपको दिखता है ना, ये जो आपको दिखता है प्लेन मिरर के अंदर जो अपनी शक्ल दिखती है वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। लेकिन एक्चुअली में ये जो दो रिफ्लेक्शंस हैं, जो कि ये रूम का रिफ्लेक्शन है और ये नॉर्मल प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन है, दीज आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर वन जो ये है जिसकी वजह से हम बाकी चीज़ों को देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पूरे संसार को देख पा रहे हैं, वो जो रिफ्लेक्शन है वो टाइप जो है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसे, उसे हम बोल देते हैं डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर, ठीक है। और जिसकी वजह से तुम ये अपने शीशे में शक्ल देख पाते हो, जिसकी वजह से शाइनी सरफेस के अंदर एक इमेज प्रोड्यूस होती है, दैट इज एक्चुअली रेगुलर रिफ्लेक्शन। और तुम्हें पता है मेन अब ये जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है ना, और ये जो दो टाइप्स हो रहे हैं, ये दो टाइप्स एक्चुअली किस वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सरफेस की वजह से। मैंने तुम्हें बताया था मिरर एक हाईली पॉलिश सरफेस है, सही बात है, ये एक हाईली पॉलिश सरफेस है मिरर, इसी वजह से ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है क्योंकि ये हाईली पॉलिश्ड है। और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी सरफेसेस तो रफ भी हो सकती है, डेफिनेट सी बात है ना। अब क्योंकि उनकी सरफेसेस रफ हो सकती है तो वो भी रिफ्लेक्शन तो शो कर रहा है, बट इट इज़ इर्रेगुलर, इट इज़ डिफ्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पता चल रहा है कि ये टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेसेस हैं, इसी वजह से हमें टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन तो भैया बहुत क्लियर है, ठीक है, वो एक्चुअली आपको एक यू कैन से ऐसा रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से यू कैन से आपको इमेज दिखता है ना। ये जो रिफ्लेक्शन है इसकी वजह से आपको चीज़ें दिखाई देती है, ऑलराइट। आई विल बी टेलिंग यू हाउ दीज आर सो मच गुड। हम वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहले हम रेगुलर वन को देखते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से स्लाइड चेंज करती हूँ।
फिर आपको बताती हूँ रेगुलर सरफेसेस। देखो रेगुलर सरफेसेस में क्या होता है, एक बिल्कुल प्लेन हाईली पॉलिश, रेगुलर मतलब बिल्कुल हाईली पॉलिश पे होने वाला है, ठीक है। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो हमेशा हाईली पॉलिश सरफेस पे होगा। तो देखो ये है एक हाईली पॉलिश सरफेस और ये रहे वो रिफ्लेक्शंस, ठीक है। लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, दिस इज अ बीम ऑफ लाइट, राइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो देखो आती है, टकराती है और वापस चली जाती है, दूसरी वाली आती है, टकराती है, वापस चले जाती है, तीसरी वाली आती है, टकराती है, वापस चले जाती है। और एक और बात, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज अगर आ रही है तो टकराने के बाद भी वो पैरेलल ही रहेगी। दैट इज एक्चुअली द रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सिर्फ इसी की वजह से आप शीशे में अपनी शक्ल देख पाते हैं, ऑलराइट, या फिर किसी भी शाइनी सरफेस पे अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आती है तो टकराने के बाद एज इट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे वापस चली जाती है, alright, this is the regular reflection. देखो the phenomenon due to which a parallel beam of light traveling through a certain medium on striking some smooth polished surface bounces off from it as parallel beam. That is important. As parallel beam, ठीक है, ये जो है as parallel beam है, ठीक है, ये important है। इकलौता डिफरेंस है बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में। क्या इसमें है, यहाँ पर तुम पहले देखो रिफ्लेक्शन जो रेगुलर वन है कि भाई ये आती भी पैरेलल बीम की तरह, टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद भी जाते भी पैरेलल बीम की तरह है, ऑलराइट। इसी वजह से आपको हमेशा क्लियर दिखाई देता है, ठीक है, मिरर के अंदर, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। अब मैं जो है आपका नेक्स्ट बताती हूँ। देखो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं ये जनरली ऐसी सरफेसेस से होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लेन होती हैं, ठीक है, स्मूथ होती हैं, ठीक है, और उन पे जो यू कैन से उनका रफनेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स लाइक लुकिंग ग्लास, स्टिल वाटर, ऑयली और हाईली पॉलिश्ड मेटल। सो बेसिकली देयर हैज टू बी द हाईली पॉलिश्ड। अगर हाईली पॉलिश सरफेस है दैट मीन्स दैट विल बी द रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, वी कैन सी आवर फेस इन अ मिरर ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लेयर हमारी आंखों में जाता है आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मतलब हमारे पास देखो जब हम अपना इमेज देख रहे होते हैं तो एक्चुअली में लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से आती हैं, मिरर पे टकरा के, उस शाइनी सरफेस पे टकरा के हमारी आंखों में जाती हैं। हमारी आंखों में जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल बीम आ रही है, ठीक है, पैरेलल बीम आ रही है, तभी वो बहुत यू कैन से एक स्ट्रॉन्ग ग्लेयर आता है हमारे आंखों में, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, इररेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड की, तो देखो क्या इसमें चेंज है, क्या डिफरेंस है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आई थी बट जब वो रिटर्न कर रही है, जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है तो वो पैरेलल नहीं रही, वो कैसी बन गई है, डिफ्यूज बन गई है, इररेगुलर बन गई है। अब वो पैरेलल नहीं रही, अलग अलग, जिसका जैसा रूल फॉलो हो रहा है वो वैसा वैसा जा रही है, ठीक है। तो ये जो है पहली वाली आती है अलग एंगल से जा रही है, ठीक है, दूसरे वाली आती है वो अलग डायरेक्शन में जा रही है, तीसरे वाली आ रही है अलग डायरेक्शन में जा रही है। सो दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग अ पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन सी देखो the phenomenon due to which a parallel beam of light traveling through some medium gets reflected in various possible directions. Remember, various possible directions, ठीक है। It is not a parallel beam of light after reflection, ठीक है। That's why it is diffused, it is irregular, ठीक है, and इसको हम बोलते हैं diffused and irregular reflection. So basically you can see the things, ठीक है। आपकी आंखों में चमक तो नहीं पड़ती है ना, है ना, जब आप चीज़ों को देख रहे हो, सोफे को देख रहे हो, टेबल को देख रहे हो, आपकी आंखों में एक ग्लेयर नहीं है, ठीक है, आपकी आंखों आपको इतना ज़्यादा कोई चकाचौंध नहीं लग रही है, ठीक है। तो दैट इज द एक्चुअली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो चीज़ों को विजिबल कर रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअली में, जो सोफा है जो आपको दिखाई दे रहा है, लाइट उस पर आ रही है, उस सोफे की सरफेस से टकरा के तुम्हारी आंखों में जा रही है, देन यू आर एबल टू वॉच दैट। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, आई टकरा के तुम्हारी आंखों में गई, रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन एक्चुअली में वो जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा है, डिफ्यूज्ड है, इसीलिए तुम्हें वो चमकता सा नहीं दिखता है, राइट, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग ग्लेयर नहीं है तुम्हारी आंखों में, ठीक है। ये है इसका मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
अब देखो रिफ्लेक्शन के लिए तुम पूरे चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में जैसे बीम ऑफ लाइट आती है ना, बीम ऑफ लाइट आ रही है, टकरा के जा रही है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ग्लेयर बन रहा है। लेकिन जो इर्रेगुलर का केस है, उसके केस में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, टकराने के बाद वो हर डायरेक्शन में जाती है, समझे, हर डायरेक्शन में जाती है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो हर डायरेक्शन में जा रही है। ऑलराइट, और इसी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है यहाँ पर कि तुम पूरी चीज़ों को अच्छे से देख पाते हो, राइट। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन है लाइट को बिल्कुल स्कैटर कर देती है। और डेफिनेटली वी नो दैट द सरफेसेस आर रफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूल्स फॉलो नहीं करें। रिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। स्टिल उनमें जो एंगल्स है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, वो पॉसिबल है, वो होता भी है, क्योंकि लाइट कभी रूल्स को नहीं तोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देखना है कि आप जो भी चीज़ें देख पा रहे हो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हो। अगर ये फिनोमेना नहीं होता तो शायद आप चीज़ों को नहीं देख पाते, राइट, आप कुछ और हो रहा होता डेफिनेटली। सो बेसिकली हमको ये जानना था कि भाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसकी वजह से लाइट चारों डायरेक्शन पे, नॉट चारों डायरेक्शन मतलब एवरी सिंगल पॉसिबल डायरेक्शन में चली जाती है ना। तो लाइट एक साथ पैरेलल नहीं जाती है, हर एक लाइट रे रूल्स फॉलो करती है, बट रूल्स फॉलो कर कर ही वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी, एज यू कैन सी, द रेगुलर एंड द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, नोट करना है तुम्हें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड नो मैटर वेदर रिफ्लेक्शन इज रेगुलर और इर्रेगुलर। पहली बात तो भाई ये, ठीक है, हमने जो देखी थी कि भाई जो भी रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो भी रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है कि उसमें रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, रूल्स फॉलो हो रहे हैं। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एक तो हर सरफेस के लिए पॉसिबल है, आइदर इट इज कर्व्ड, आइदर इट इज प्लेन, राइट। और इर्रेगुलर एंड रेगुलर रिफ्लेक्शंस में भी कैसी भी सरफेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट हमेशा अपने रूल्स फॉलो करेगी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वैसे तो तुमको लोग को पता है कि भाई जो लाइट रे होती है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट ऑल डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे सन है, ठीक है, ये है सन, तो सन की जो लाइट रेज निकल रही होती है ना, हम बचपन में कैसे ड्राइंग बनाते थे सन का हम हमेशा ऐसा ड्राइंग बनाते थे, अंदर येलो कलर फिल करके जो है रेज बनाते थे। ये जो रेज है एक्चुअली हमें बचपन में पता चल गया था कि भाई रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है। कैसे होता है, ये जो रेज है ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है, बट हमेशा स्ट्रेट जाती है, हर एक डायरेक्शन में जा रही है बट हमेशा स्ट्रेट जा रही है, इट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट। इनके न जाने कितने एग्जाम्पल तुम्हें मिल गए होंगे, कितने एग्जाम्पल मिल गए। ये मत सोचो कि बस एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा नहीं है। सन, जो हमारा सन है, ठीक है, वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में सनलाइट को फेंक रहा है, ठीक है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, राइट। और वो सारी की सारी लाइट जो है वो ट्रैवल करती है बिल्कुल स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट इज द ओनली मीनिंग, दैट इज द लॉ फॉलोड बाय दिस लॉ। इसका कुछ एग्जांपल्स है कि भाई अगर कहीं भी कोई पॉइंट सोर्स होता है तो तुम देख सकते हो लाइट सीधे ट्रैवल करती है। आप यहाँ पर भी देखो, हर जगह लाइट आ रही है बट इट इज गोइंग स्ट्रेट, इट इज गोइंग स्ट्रेट, यू कैन सी। आप उसका हेडलाइट भी देख सकते हो, रात में आप देखो स्कूटर का हेडलाइट, कार्स का हेडलाइट, तो उनका जो होता है वो भी जो है स्ट्रेट रेज को जो है लाइट रे को भेजता है बेसिकली। तो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसका हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि भाई सचमुच में ऐसा होता है कि नहीं, पता कर लेते हैं। तो ये है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं अभी। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हम लोगों ने, कार्डबोर्ड लिया, आइदर कार्डबोर्ड ले लो और वुडन बोर्ड ले लो, ठीक है, और उसको किस तरीके से आपको रखना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ABC, ठीक है, ये 3 हमने कार्डबोर्ड्स लिए हैं। कार्डबोर्ड भी किस तरीके से रखे हैं, ठीक है, ये सेम साइज के होने चाहिए सारे के सारे, ABC सेम साइज के कार्डबोर्ड है, वर्टिकल हमने उनको रखा है, एंड उनके अंदर हमने क्या किया, एक होल कर दिया है, ठीक है, तीनों पे होल किया है, सेम डिस्टेंस, सेम यू कैन से पोजीशन ऑफ द होल, ठीक है, तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये तीनों सेम पोजीशन है होल की, ठीक है, चाहे आप ऊपर नीचे से नाप लो, चाहे आप आगे पीछे से नाप लो, ठीक है। सो बेसिकली इट इज सेम। अब क्या होगा, अगर आप ए के इस तरफ कैंडल को लाइट करें और उसकी लाइट रेज को इससे देखने की कोशिश करें, ठीक है, सेम हाइट पे होना चाहिए तभी दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा,
तो हमने क्या किया, ये जो होल्स बनाए ना वो इसी हाइट पे बनाए हैं जितनी हाइट की हमारी कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे जब जा रही है तो वो आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी, आप देख पाएंगे, इसकी जो लॉ है उसको देख पाएंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर भी लेट्स से आपने कैंडल को उठा के ऊपर कर दिया तो आप नहीं देख पाएंगे, या फिर आपने क्या किया, इस जो बी वाला पोर्शन है ना इसको ऊपर कर दो, साइड कर दो, चेंज कर दो, इसको डिस्प्लेस कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका जो छेद है वो अपना करेक्ट पोजीशन में नहीं आएगा। जब इसका होल करेक्ट पोजीशन में नहीं आएगा तो इसका मतलब वो लाइट को ब्लॉक कर देगा और आप तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी। एंड दैट इज द प्रूफ, दैट इज द प्रूफ कि लाइट रे जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। एक और होता है कि तुम उसको बेंड पाइप से नहीं देख पाते हो, है ना, एक और एक्सपेरिमेंट है। तो अगर स्ट्रेट पाइप से आप देखने की कोशिश करोगे लाइट रे को तो वो आपकी आंखों तक पहुंचेगी, बट अगर वो कर्व्ड होगा तो वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचने वाली है, ठीक है। बेसिकली दैट इज शोइंग अस दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो है बहुत ही ज़रूरी बात है। अब देखो आगे कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन करती है, ठीक है, हम लोगों ने जो है इसको देख लिया है। तो अब देखो हमारा जो मेन कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन का एंड द यू कैन से द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर ये है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करोगे, लेकिन तुम अपना स्टार्ट कर दो। सब बच्चे अपना अपना करना शुरू कर देंगे, बाद में हम लोग आंसर मैच करेंगे, ठीक है, कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल क्यू, ये क्यू नहीं है एक्चुअली, ये थीटा है, ठीक है, विद इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट रे ऐसे फॉल कर रही है और मिरर के साथ वो थीटा बना रही है, दैट इज व्हाट, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब देखो इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री, ये है पूरा का पूरा, ये 80 डिग्री गिवन है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, क्विकली डू इट नाउ। अब यहाँ पे देख लो, हम जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, तो हम लोग लिखने वाले हैं बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। और हमें पहले से बता दिया गया है कि ये जो एंगल है जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, ये टोटल एंगल 80 है। हमें ये बात पता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, राइट। इसका मतलब ये जो नॉर्मल है ये इनको हाफ में तोड़ती है, ठीक है, किस में तोड़ती है, हाफ में। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 80 डिग्री है, हमें पता चल रहा है ना, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, ठीक है, ये है एंगल आर, ये है एंगल आई। तो देख यहाँ पे ना आई लिखा है मैंने, ये यू नहीं लिखा है, ठीक है, ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, दोनों को मिला के 80 डिग्री हमको गिवन किया हुआ है ना। हम ये बात जानते हैं एंगल आई एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 एंगल आई बराबर 80 डिग्री। तो एंगल आई अपना कितना आ गया है, 40 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये आ गया 40 डिग्री। अब ये अगर एंगल आ गया 40 डिग्री, और ये बात मुझको पता है कि जो नॉर्मल होता है वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है, राइट, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इन दोनों को ऐड अगर मैं करती हूँ, आई विल बी गेटिंग अ 90 डिग्री, ऑलराइट। सो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल आई प्लस एंगल थीटा इज गोइंग टू गिव मी 90 डिग्री, ठीक है। एंगल आई प्लस एंगल थीटा इज गोइंग टू गिव मी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो है वो मिरर से 90 डिग्री बनाती है, ये बात मुझको पता चल गई है, राइट। ये जो लाइट रे है एक्चुअली वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये भी बात मुझको पता चल गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर दूंगी तो मुझे 90 डिग्री मिलना चाहिए, राइट। अब देखो एंगल आई का वैल्यू मुझे पता है 40 डिग्री और एंगल थीटा मुझे पता करना है, तो यहाँ पे एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 दैट इज 50। सो आई होप तुम बच्चों का भी 50 आया हो, ठीक है, 50 ही आना है, जिसका 50 नहीं आया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए, आना तो 50 ही है, ऑलराइट। फटाफट नोट कर लो इसे।
चलो है ना, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसको पहले तो तुम करना शुरू तो कर ही दो, ठीक है। मैं पहले इंक सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखो, लाइट रे ए बी इंसिडेंट्स ऑन अ पॉलिश सरफेस एक्स वाई एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, ये हमें बता दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं। हमने बना लिया है एक सरफेस, ठीक है। ये रहा मिरर, यानी कि ये पॉलिश सरफेस है एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। एट एन एंगल 50 डिग्री पे जो है वो कर रही है, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाउ मच, 50 डिग्री, ठीक है। Light ray AB incident on a polished surface at an angle of 50 degree. The second polished surface is placed in such a way that the reflected ray BC from polished surface XY retraces its path. तो देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है वो देखो ध्यान से, ठीक है। मैं ये इंक कलर चेंज कर लूँ। देखो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं हम, एक और प्लेन सरफेस रखने वाले हैं, जो पॉलिश सरफेस रखने वाले, इस तरीके से रख रहे हैं कि ये जो लाइट रे जाएगी, है ना, ये जो लाइट रे जाएगी वो एक्चुअली 90 डिग्री पे फॉल होनी चाहिए, क्योंकि वो देखो वो रिट्रेस कर रही है अपनी पाथ को। तो ये जो दूसरी सरफेस है दैट शुड बी लाइक दिस, है ना। तभी तो ये वाली जो रे है जब ये ऐसे जाएगी तो 90 डिग्री पे फॉल करेगी, तो ये वापस रिट्रेस कर सकती है अपने पाथ को। ऑलराइट, ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना। अब हमको देखना है क्या बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टू पॉलिश सरफेसेस। अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉलिश्ड सरफेसेस हैं, ये एंगल दैट इज लेट्स से इट इज थीटा, तो ये थीटा कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। समझे कि नहीं समझे? अब मैं तुम्हें क्विकली इसका आंसर बताती हूँ। मतलब जो बच्चे मैथमेटिक्स पार्ट में बहुत अच्छे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत फायदा ही फायदा है, ठीक है। ज्योमेट्री जिनको बहुत अच्छी आती है वो उनका यहाँ पे लाइट रेज के लिए जब हम बातें करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो बहुत ही बढ़िया वो लोग परफॉर्मेंस देते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, मुझे इसे बड़ा बनाना चाहिए था वैसे तो, पर कोई नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे? मुझे बात ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं बराबर, राइट। अगर ये 50 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। सही बात है, ये मुझे 50 मिल गया। एक और चीज मुझे यहाँ पहले से गिवन है, वो क्या गिवन है? ये है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लाइट रे ने अपना पाथ रीट्रेस किया है, तो मुझे पता था 90 डिग्री है। ऑलराइट, सो मुझे ये एंगल मिल गया है, ये तो पता करना है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो आई कैन डू दैट, राइट। तो ये रहा वो एंगल 90 माइनस 50, 40 डिग्री। तो ये रहा वो एंगल 40 डिग्री, ठीक है। सिर्फ हमने ज्योमेट्री किया है, सिर्फ ये एंगल्स का खेल है और कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से की? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये जो एंगल है दैट इज 50 डिग्री। एक और बात मुझे पता थी कि भाई 90 डिग्री मिलेगा। ये जो लाइट रेज आएगी अगर वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को तो वो 90 डिग्री पे कर रही होगी, राइट। अब देखो ये 90 डिग्री ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज द ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 डिग्री कर सकते हैं। अब देखो ट्राइंगल का जो रूल होता है, ट्राइंगल का रूल तुम सबको पता है क्या? कि भाई ट्राइंगल के अंदर के जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं ना उन सबका सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एंगल थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री मुझे कितना मिलने वाला है? 180 डिग्री मिलने वाला है। तो एंगल थीटा को फटाफट कैलकुलेट कर लो, 90 प्लस 40 कितना हुआ? 130। 130 को 180 में से माइनस कर दो, यू विल बी गेटिंग 50 डिग्री। आ गया 50 डिग्री, खत्म बात। बस इतनी जल्दी क्विकली करना है हम सबको, ठीक है। इसी तरीके से हमको करते चलना है, सारे क्वेश्चंस करते चलने हैं। ऑलराइट, चलो अभी एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग जल्दी से कुछ ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ये है और ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। लेट्स से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है x एक्सिस पे प्लॉट किया है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंसेस मैंने कहाँ प्लॉट किए हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस मैंने y एक्सिस पे प्लॉट किए हैं। सो दीज आर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि भाई हमेशा जब रूल फॉलो कर ही रहे हैं तो मतलब हमेशा एंगल आई विल बी गोइंग टू विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा होगा ही होगा, तो मतलब जितना एक्स में चेंज होगा उतना ही वाई में चेंज होगा, तो वी विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। बस खत्म बात। यही चीज़ हम लोगों को पता करनी थी भाई, एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा इक्वल होना है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ऐसे करते करते वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एट 45 डिग्री, राइट, बिकॉज दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई. So this is a graph between the angles of reflection and angle of incidence. Basically that is the thing you need to know. Alright, so we are going to end this lecture now. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it. Do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.